and welcome back to Kai Anand. I'm Sneha and I hope you all are doing fine with your loved ones. आज हम क्या करेंगे? Some ready-made subgroups. These are universally available subgroups with any group. Given any group, these 4 subgroups are already there, right? अब देख लेते हैं ये हैं क्या. सबसे पहला लिखा हुआ है मैंने, this is known as a subset generated by A. आगे जाकर के इसे हम सबग्रुप बना देंगे, but for now this is a subset generated by A, where A is any element from the group. What is ZG? ZG is the center of the group. We are going to define them one by one, but अभी के लिए नाम जान लेना बहुत ज़रूरी है. Third is the centralizer of an element A, and fourth is the centralizer of a subgroup H. So जो फोर्थ वाला है ना, उसको वंस वी प्रूव दैट फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब सब ग्रुप्स हैं, फिर हम इनके लिए भी सेंट्रलाइज़र बना सकते हैं, राइट. सो ये हैं सब ग्रुप्स के सेंट्रलाइज़र, वेयर इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, जो सब ग्रुप मुझे पता है. नाउ वी हैव टू प्रूव वन बाय वन दैट दे आर एक्चुअली सब ग्रुप्स ऑफ our given group. So we are going to start with the very first one, subset generated by A. Subset generated by A is defined as the powers of A. I write here A raised to the power n, where n belongs to Z. That means given any A from G or given any element from the group, when you operate that element with itself different number of times, you will get different elements, and उन सब का जो collection होगा that is known as the subset generated by A. ठीक है. यहाँ पर एक notion है हमारे पास that क्योंकि n belongs to Z लिखा है तो Z में 0 भी आएगा, so A raised to the power 0 is treated as the identity element of G. Now I have to show that this is actually a subgroup of G, और group show करने के लिए we are going to use one step subgroup test. So very first thing or very first observation is this, that A obviously is A raised to the power 1 belongs to the set, and hence the set is non-empty. Once I am confirmed that इस set के अंदर कुछ तो elements होंगे, now I can go further with the test. Second thing is, I just wrote here that A raised to the power 0, which is the identity element, it belongs to the set, and therefore जो फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट होती है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के लिए कि आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो है यहाँ पर. थर्ड, लेट अस कंसीडर 2 एलिमेंट्स x एंड y फ्रॉम द सेट और फ्रॉम द सबसेट जनरेटेड बाय A. दैट मीन्स अल्टीमेटली मुझे क्या शो करना है, दैट एक्स वाई इनवर्स शुड बी इन द सबसेट जनरेटेड बाय A. क्योंकि x इज़ एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, दैट मीन्स x इज़ ऑफ द टाइप A raised to the power some n, and y is of the type A raised to the power some m, where n and m are from Z, right. Once this is done, I have to calculate or I have to find out what will be x y inverse, right. What is x? It is A raised to the power n. What is y? It is A raised to the power m, and the inverse I can write this as A raised to the power n into A raised to the power minus m, and therefore this is A raised to the power n minus m. Now note that n minus m will definitely be an integer, and therefore I can say that x y inverse is indeed a member of the subset generated by A, and hence by one step subgroup test I can say that this is a subgroup of G, है ना. So ये था वन स्टेप सबग्रुप टेस्ट जो हमने लास्ट वीडियोज़ में पढ़े हैं कुछ. अगर आपकी लास्ट वीडियोज़ मिस हो गई हैं तो प्लीज़ चेक कर लेना उनको. सेकेंड इज़ ZG में क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, इसमें मुझे वो एलिमेंट्स इकट्ठे करने हैं ग्रुप के जो मेरे ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हों, हर किसी एलिमेंट के साथ. तो कोई भी ग्रुप होगा उसमें कुछ, मैं ये नहीं कि हम वी कैन नॉट से दैट उसके अंदर जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कम्यूट करेंगे, क्योंकि अगर सारे के सारे एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे तो ग्रुप अबिलियन होगा, है ना. तो यहाँ से हम ये चीज़ भी नोट यहाँ लिख सकते हैं. नोट जो बहुत पहली चीज़ है हमारी, इफ़ G इज़ अबिलियन दैट मीन्स एवरी एलिमेंट इज़ कम्यूटिंग विद every other element. If G is abelian, that implies the center of the group is nothing but
द ग्रुप इटसेल्फ। ना तो इसके अंदर मुझे वो एलिमेंट्स इकट्ठे करने हैं जो मेरे ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहे हों। नाउ वी हैव टू प्रूव कि ये भी हमारा क्या है, सब ग्रुप है। एक ऐसा एलिमेंट जो आपके दिमाग में आ रहा है ग्रुप के लिए जो बाकी सब एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है, वो कौन सा एलिमेंट है? वेरी ट्रिवियल एलिमेंट, दैट इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। सिंस द आइडेंटिटी एलिमेंट कम्यूट विद एवरी अदर एलिमेंट इन द ग्रुप, माई आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेंटर ऑफ द ग्रुप। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड इज क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव कर रहे हैं। बेसिकली वी आर यूजिंग हियर द 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। सो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए लेट अस कंसीडर वी हैव 2 एलिमेंट्स A and B from the center. If they are from center, that means they commute with every other element of the group, right? So ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं for all x in G. Now I have to show that इनका जो प्रोडक्ट होगा A और B का, वो भी मेरे बाकी सब एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेगा। वो कैसे शो करेंगे? We will take the product and we'll operate it with any element x of the group, right? Since I have these properties with me, ये brackets में shift कर सकती हूँ and I can write them like this. And bx, since b is commuting with every other element, I can write it as axb and further it will be xab. That means ab जो product है हमारा, वो भी बाकी सारे, दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल एक्स इन जी। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए दिस इज़ ट्रू, एंड देयरफॉर आई हैव दैट ए बी इज इन द सेंटर। नाउ थर्ड इज़ मुझे शो करना है कि इन्वर्सेस भी आते हैं यहाँ पर। इन्वर्स के लिए ना मैं यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगी पहले। सिंस आई नो दैट ए एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स इन जी, मैंने पहले तो A इन्वर्स अप्लाई कर दिया दोनों साइड टू गेट x इक्वल टू A इन्वर्स एक्स ए, और फिर मैंने A इन्वर्स अप्लाई कर दिया कहाँ पर? x के राइट हैंड साइड पर टू गेट x A इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स x। दैट मीन्स A इन्वर्स जो है दैट इज़ ऑल्सो कम्यूटिंग विद एवरी एलिमेंट ऑफ G, एंड देयरफॉर इन्वर्स जो हैं वो भी हमारे सेंटर के एलिमेंट हैं। तो वंस दिस इज एस्टैब्लिश्ड आई कैन से दैट द सेंटर इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये हो गए हमारे 2 रेडीमेड सब ग्रुप्स। जो बाकी के 2 बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर, आपको अच्छा लगा। अगर 1 स्टेप 2 स्टेप फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट में कोई डाउट है तो पीछे जो लेक्चर्स दिए हुए हैं उनको जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।